atomic database and database history. Okay, so the topic would be the same, taking it part 2, atomic database and some database history, though this particular class is in continuation to that old class. Okay. So what we studied till now, let us have a small recap. So we talked about the atomic database, we talked about Swami Vivekananda, we talked about John von Neumann, okay, some of the persons who had got photographic memory and their internal structure was very, I should say, clear, okay, so they were able to grasp or store the information in a nice way because their internal clouds, electron clouds were that clear, okay. Once it happens with any person, he will also become like that, okay. So that thing is each and every person on Mother Earth is carrying that ability with himself. Only thing is you have to walk the path, and if you read their history, if you read their life's journey, then you will come to know that it is a pure path, okay. So they have to I mean, if you study the story of Swami Vivekananda also, he has also gone through tremendous clearing process, okay. He has seen all the things with his own eyes, and he was there, okay. So he walked on the ground with the people, and after that he was like that. So nothing is like magic, okay. You have to walk the path, and you have to live a simple, harmonious, normal life, and then everything should happen. But we should not go after these things. Generally, we should live our life and we should do the meaningful work. And if something happens, that is well and good, because nature wants that. So it happens because that's kind of a story element, okay. So whatever your story is, because you have come here on Mother Earth to have your own story, okay. So everybody is having his own story. So in those story elements, whatever is needed, Mother Nature will give it to you. But we have to work. We do not know in advance all these things. So that is why that way of walking the path is not very generally. The healthy path is that you should do daily, you should do work, whatever is given to you, okay, or whatever you seem like, okay, if there is any problem going somewhere, how can I contribute into that, and slowly should move. So there were many people who had these atomic databases, very advanced atomic databases, okay, and several more things will come in future because the vibrant beings are vibrant and healthy beings, because many people, a kind of a revolution is happening. Many people are like working towards this internal path. So over the time you will see a nice earth, okay, a flowering earth, and with vibrant beings. So they will have different qualities, I should say qualities, okay. Qualities is a better word. And how it works, so then these things will be will come into day-to-day use. So this was just one intuitive term, atomic database, and we basically are using it each day. And then we talked about certain how the database has evolved. So even though when the computer systems were not there, we were using some kind of a knowledge transfer. We were using some kind of inventories, okay. And then some verbally recorded things were there. Then later pothis came, paper also came. We used to have bahikhatas, okay, in which our shopkeepers and different persons, they used to keep the records, and there were many social things around that. But we are strictly dealing with, we are taking this as a record, okay, whatever was happening in their lives, and if they want to continue, they want to store that information, they want to place that information somewhere. So that was kind of a bahikhata. So if we see a automated form of bahikhata was is a database, okay. So in mid when if we see the in mid 1960s, Hannah, these things started to appear.
The first model that we talked about was flat file model. You remember? Okay. So in that the records were very sequential. Data is kept sequentially. So at the end of the day, what you're doing it for, you have to. I mean, if you're keeping some data at some point of time, you have to. I mean, there is a need to read that data also. Okay. Otherwise, why would you keep it? Because maybe in your life, in your day-to-day life, you are using it, or if you are storing it somewhere, or if it is automatically getting stored somewhere, so maybe for the future generation also they can use it. So this was a nice advanced system. This is how Akashic records also used to work. So we'll take that in some other class. But in these searches, so how that search was there, so basically since the search was sequential, so sequential search is like it takes time. So if you want to search for the first record, oh, it is very easy. Okay, this is the first record. But if suppose the record is at the end of the file, at the end of the file, then it will take time. Okay, so that was not a very efficient way. So people used to think, people use different people, so working towards that, and then they thought that the databases were needed and they should be little expandable, little efficient, more efficient. Okay, and they were focusing on the search also, because at that time when these things were evolving, the space was also an issue. Nowadays space is no more issue. You have got plenty of space in your hand. Okay, in your small pen drives, in your hard disk, etc. Lots of space is there, but the efficiency still matters, है ना? And that was like a point of concern at that time also. So in 60s, basically IBM used a hierarchical model called information management system. So there it started, and it was kind of a tree-like structure that we dealt in our previous lecture. Okay, and it was successfully used by NASA and other things for their lunar, for their managing drawings for the lunar lander. And then what then came a more flexible network model. So in this previous model, tree-like structure, we had like one parent and many children could be there. But in the next model, which was by GE's Charles Beckman, there could be multiple parents also. That was also. But with the advent of that, as multiple parents came, they were like became. I mean, once the information got huge, there were many pointers, and it became a problem. And then the scene changed. What came next was Mr. Tredgord, and that was like a turning point in the whole story. Mr. Tedgord, who was a computer scientist, he gave the a better idea. He gave the paper was regarding the relational database model. Okay, he proposed that in 1970. So now the story, which started in mid 1960s, is now moving towards, or even before that. Okay, in ancient India, in ancient times, in ancient civilizations, every time, because this is just a cycle, and this is how it moves. Okay, so he proposed that paper in 1970. And what he proposed was, okay, let us put the data in simple tables of related information. Okay, so this idea was very groundbreaking and many people liked it. Mr. CJ Date, he was also IBM author and instructor. He liked that, and they both came in tandem. And then they used to give the seminars, then they take the lectures, independent lectures kind of thing. Okay, and several, I mean, they were spreading the awareness, and they were promoting this idea together, and many people were listening to them, and many people were started forming, they started forming different their notions about that. Okay, this is, so it was such a nice collaborative environment was there at that time. Everything that they wanted to do, some person or the other was doing it. So if we could have such kind of an environment with these harmonious activities, also with this harmonious approach, then you will not feel like, I mean, there will be a feeling of timelessness, because you always have a vision of your life. Okay, I want to do this, and you've got time also. Otherwise there is a pressure of time always. So there are many people who do not want to do that. I mean, they want to do that in their own relaxed environment and want to proceed further. So this is how the researchers work. So इस तरीके से हुआ वो. Okay, उसमें क्या था, there was no pointers to be maintained because tables are connected. So we have seen these tables. Do you remember? हमने जो टेबल ली थी, master table was there, then location table was there, then center table was there. Okay, center में हमारे धम्मसुधा थे, है ना, धम्म पठाना थे. तो किस तरीके से they are related? So they were keys. Okay, based upon those keys you can access those tables. So this was pretty nice model, and this made it easier to access, merge and change data. ठीक है, इस तरीके से ये हुआ relational वाला. And then at the end,
It was like because in 1973, then we moved to 1973, and that was our last topic over there in the last lecture. Michael Stonebreaker, okay, his team at University of California, Berkeley used Codd's idea. They were also very impressed, and they were constantly working on Codd's idea to create the relational database that is called as Ingress. Ingress is interactive graphics retrieval system. Okay, so and they making it, I mean, they made it freely available for a modest fee, I think. Okay, several companies used it for the basis of their commercial products. वो भी हुआ वहाँ पे होना start हो गया. So they have like came up with this ingress thing. Okay, it was relational based upon Codd's idea itself. So the Codd's idea was very bright idea at that time. It still is. Okay, so now people are working towards the quantum thing. So in that they are taking because the normal computer system we have like 2 bits. So in quantum we have several bits. Okay, superposition, entanglement, teleportation, many things are happening. So now the database will also get will move towards that. Okay, so now new things will come moving from now on. Okay, so it took until after this it took until 1975. Okay, so let us see. 1973 May it was Ingress. Okay, Ingress was UC Berkeley का था ये, है ना? Okay, उसके बाद I mean this was in 1973 and 2 years later. Okay, in 1975. 1975 में अगर देखें तो IBM, because why, I mean they were working continuously, different people were working. Okay, because Cord was an employee, I mean Cord was a computer scientist at IBM. Okay, and Mr. Date was also there, but their idea was such that different people were taking that idea, and IBM was little slow in support of that new idea, but they were also constantly working because their management system was IMS. Okay, IMS was their management system, so they have to like, so they were thinking that how should we take it forward. But somehow in this journey, they also realized that this is a nice idea, so let us have some product related to that. So IBM produced an experimental relational database. Okay, experimental relational database. This is important. Okay, what was the name given? It was System R. System R. Okay, please remember this. Have you ever heard of this before? Okay, so this was the name given, System R. And there were some articles also at that time which used to come. They must be having some journals, or वहाँ पे this was getting highlighted. Okay, so this was an experimental relational database. So relation, when I'm talking about relational database, what do you mean by that? What do you understand by that? It was in the form of tables which are related. Okay, so you just refer to our previous lecture where we have shown this relational database in a very basic form. Okay, then you will get the feel of it. And since this is like we are talking at the high level, and when we'll go into the detail of it, okay, we'll take some example in some other class where I will show you how it works. Okay, but even before working, we should always have the higher idea. If you have that thing, it's like higher vision. Always remember this. अगर ये चीज आपने कर ली तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा. Higher vision and
implementation. Okay, this is how everything works. Ground implementation. Okay, कोई भी चीज इस तरह से वर्क करती है. ठीक है. And how you get the vision? Vision you get from the above. There are other channels for getting that vision, and once you work on the inner path, then everything happens, and whichever is suited for this current time, you'll get that vision, and then you'll start working on that. That is how earth proceeds. Okay, that is how Srishti works. Each and every time new things are happening, so that is very important. Okay, so these comes in the form of signals, and then you work on them, and then several things happen. There is a whole lot cycle to it. जो अब हमें आइडिया है वो क्या साइकिल है, which many people which some of the people have that idea. तो वो किस तरह से वर्क करती है at the ground level, and what are the challenges, what are the things, what are the hiccups that you face in that, and how you move, you can move. So there is a whole lot of study to it, research study to it. कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे. So it used, the nice thing about system R is that it used a query language, because they were the tables. Do you remember the tables? Master table was there, the center table was there, location table was there. Okay, suppose if I want to find any information from these three tables, so I have to use some language, right? किसी तरीके से तो मैं उसे define करूंगा कि मुझे इससे ये चाहिए, उससे ये चाहिए, because they were connected from the master table through that ID. Do you remember that ID form? तो उससे था वो. ठीक है. So they used, okay, structured query language for this system R, and this is what the kind of birth of SQL, okay, we are talking about when we are talking about system R. Okay, so I should say, like, you'll get a basic feel, and then you can like see it for yourself also. Okay, system R, ये क्या था? RDBMS ही था, एक एक्सपेरिमेंटल. ओके, एक था used structured query language, new thing. Okay, have you, I mean, do you know the word, this word? Have you any time like heard it before? Structured query language. Okay, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं SQL. ठीक है, किसने दी थी ये? It was given by Don Chamberlain. Just wait. Chamberlain and Raymond Boyce. Raymond Boyce. BOYC. Okay. देख लेना, you can check it out है ना, इस तरीके से. Okay, so new thing which happened was structured query language. Let's remember this. It's a kind of a language. So these things, generally what we do is, I mean, if suppose a new system comes, there are like lots of accessories also come, lots of infrastructural thing also come. Suppose RDBMS is there, definitely you need to have some language. So the main thing is the idea. So first core idea was relational database, relational thing, how we can put the data in tables. Okay, and we do not have to maintain that pointers, and there will simple keys would be there, and this is how these tables will be related.
And after that, all these things are coming. So first the idea comes, and then the technology comes. Okay, and then with technology, so many things come: SQL, this and that, and so many. Hardware also coming, software is also coming, languages. I mean, it's also kind of a software. Okay, so different things. So ये कहाँ पे था? SQL कहाँ पे हुआ ये? It was developed by IBM's. Both these persons, Don Chamberlain, ठीक है? They were कहाँ पे थे? ये IBM में ही थे. ठीक है? They were working in IBM at that time. Getting it? So parallelly, something all because the environment was like that. I mean, since we are dealing in this particular topic, we are dealing with database only. But apart from database, also several things were taking place. Hardware was also coming. Okay, so some people were working on the hardware, and they were seeing the opportunity that okay, the new hardware could come up, and they were seeing this idea. Okay, this idea has many things attached to it. A language could be there, our system, our relational database management system could be there, some kind of hardware could be there, and several thought processes were going on. So similarly, there was a young entrepreneur named Larry Ellison. Okay, so ये बड़ा important है. A young entrepreneur named, कौन थे? He was Larry Ellison. Okay, सुना है नाम? ठीक है. He was also very fascinated about this idea, Codd's idea of relational thing. So what he did was in 1977, he put up his own $2,000. Okay, to start his own software company. Start his own सॉफ्टवेयर कंपनी. सोचो, देखो, है ना, सब काम हो चुका है, अब नए लेवल का काम होने जा रहा है. ठीक है. स्टार्ट हिज सॉफ्टवेयर कंपनी विद, किसके साथ की थी? दो और लोग थे शुरुआत में. सो दिस हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. इफ यू हैव लाइक एनी आइडिया टुवर्ड्स दीज फील्ड्स, यू शुड नो दिस हिस्ट्री, है ना. बॉब माइनर एंड एड ओट्स, OATS कुछ था. ठीक है. And what was their mission? Their mission was to develop first commercially available relational database. So are you thinking, can you see that in 1973 that what it was kind of a research project at UC Berkeley. They came up with Ingress. Okay, after 2 years, because IBM was also parallelly working, you know. So they were, I mean, initially they were not supporting that idea, but then they thought, okay, the relational database is a good thing, and we should also have something. So they gave System R. SQL also came on board, and then Larry Ellison in 1977. Okay, he started his this with Bob Miner and Ed Oates. And what was their mission? They also were working on relational database thing. Okay, totally focusing on relational database products. So they develop and sell the first commercially available relational database. Okay, compatible with IBM's System R. Okay, so because IBM System R was also already there, 2 years later they also wanted to give a new thing on relational database because that was their thing. Okay, so their flagship product was, can you, क्या होगा उसका नाम? कुछ ट्राई कर सकते हो आप? लैरी एलिसन जो थे हमारे, उनके जो फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था? इट्स अ क्वेश्चन.
सुने से है। फर्स्ट साथ में वो भी थे सब लोग, है ना। फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट वाज, क्या था वो, सोचो क्या होगा। इट वाज मेरी आवाज ओरेकल। आ रही है? हाँ, सर लैरी ओरेकल। एलिसन फर्स्ट, सर फ्लैगशिप। फ्लैगशिप मतलब उनकी जो स्टार्ट कर रहे थे वो, उसका पहला जो प्रोडक्ट सर था वो ओरेकल उनकी नाम था। कंपनी ठीक है। प्रोडक्ट हम्म। कैसे था? ओरेकल तो हम्म, उनकी कंपनी का था। ये पहला प्रोडक्ट था, हाँ। ठीक है। सर लेकिन ये तो कंपनी का नाम था। अच्छा, हाँ प्रोडक्ट तो कंपनी मतलब। का नाम रहने दो, लेकिन प्रोडक्ट का नाम जो पहला था ना, शिप्ड इन 1979 में था, वो ओरेकल ही था, और उसी पे नाम भी है अब कंपनी का। ठीक है। अभी तक तो हमने वो अच्छा। डिस्कस नहीं किया। तो फर्स्ट वर्जन रैन ऑन मिनी कंप्यूटर्स, यही था ओरेकल जिसको आज हम यूज करते हैं, ये वही है। ठीक हम्म। है। 1979 में आया था। और बेसिकली द फर्स्ट वर्जन रैन ऑन मिनी कंप्यूटर्स उस समय थे, अगर आप कंप्यूटर्स की हिस्ट्री देखोगे कभी, किस किस तरह से वो आए, कब स्टीव जॉब्स आए, कब उन्होंने क्या बनाया। ठीक है। तो वो मिनी कंप्यूटर्स पे था, बट बाय उसमें हुआ क्या कि बिकॉज इट वाज देयर जर्नी, नाउ दे आर इनटू द स्टार्टअप मोड and they were moving towards it, then they were seeing what was the response of the people, and other products were also there um, in the same pool. Okay. यस So सर। what they did was in 1983, 1983, ठीक है, उन्होंने इसको रीरोट किया। ठीक है। they rewritten it to run on many more computer systems। किसको? यही अपना जो ओरेकल था। ठीक है। उसी को उन्होंने रिवैम्प किया, एक तरीके से रीराइट किया, एंड टू वर्क ऑन मैनी मोर कंप्यूटर्स। और क्या कंप्यूटर सिस्टम्स थे? इंक्लूडिंग आईबीएम्स पीसीज आल्सो एंड आईबीएम मेन फ्रेम्स आल्सो। ठीक है। टू रन ऑन मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स, मैनी मोर कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है। देखो कब से चली आ रही हैं ये चीजें, है ना। सोचो आप थे भी नहीं तब, तब से आ रही हैं ना, मैनी मोर कंप्यूटर सिस्टम्स। So this is the journey, है ना। This is how it starts and it takes time to mature and then it plays. Okay. Including what? IBM's PCs and mainframes. Okay. PCs and mainframes, ये भी होते थे, अभी भी चलते हैं कहीं कहीं, है ना। mainframes, मेरे से मिटा देते हैं, and mainframes, many people are working because legacy systems है ना, उन्हें भी कई बार मेंटेन करना पड़ता है। So there is a whole lot of work in these fields, है ना। कोई भी once you have acquired some skill, so you can like, there are people for these skills also. Okay. So इससे क्या हुआ, जब ये जो मूव थी इनकी 1983 वाली, ये वाली जो मूव थी अब दोबारा से जो लेके आए फिर, है ना। सो उससे दे बिकेम मोर प्रॉफिटेबल। हु? ओरेकल। ओके। प्रॉफिटेबल मूव थी ये, लोगों को पसंद आने लगा, यूज होने लगे। ओके। इट इस तरीके से। ओके। लेकिन तभी क्या हुआ 1983 में ही, अब आप सोचो कि आईबीएम भी वर्क कर रहे हैं, है ना, इधर ओरेकल भी वर्क कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग। वो आपको पता ही लग रहा है कैसे वो भी देखो सिस्टम आर लेके आ गए, है ना, एसक्यूएल भी बना ली उन्होंने,
और किस तरह से अब ये आ रहे हैं। तो उसमें 1983 में IBM फाइनली रिलीज्ड अ फुल फ्लेजेड कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, एक फुल फ्लेजेड उन्होंने यूज किया। जैसे जैसे हम देख रहे थे कि सिस्टम आर में क्या था, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनल डेटाबेस, है ना, यू रिमेम्बर। और इन 1983 में अब सेम चीज हुई फिर से। ठीक है, 1983 में फिर से IBM ने gave full fledged, okay, commercial relation, full ठीक है। IBM ये कंप्यूटर्स की हिस्ट्री वगैरह में अवेलेबल भी है डेटा, आप देख सकते हैं, है ना, म्यूजियम वगैरह है जो, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से बता भी रखी है सारी चीज़ें। ठीक है, फुल फ्लेजेड कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस। ओके, क्या नाम था उसका, कैन यू ट्राई, कुछ सुना हो कभी किसी ने? DB2। ठीक है, जनरली नहीं सुना होगा बिकॉज नाउ डेज वी hear about like Oracle and other things. ठीक है, that's why it was a universal database for mainframes. Okay, DB2 or universal database for mainframes, फुल फ्लेजेड लेके आ गए वो, है ना, सोचो। ठीक है, इसका एक वो था कि देयर वाज लाइक कोई कोई खड़े हुए लेके, है ना, उनकी जो एक व्हाट वाज लाइक कि कितना हैंडल करता है, व्हाट वाज द लोड इट यूज्ड टू हैंडल। सो उसमें था करीब करीब के भाई 40 लाख ट्रांजैक्शंस पर आवर। ठीक है, पर आवर, ये इस तरह से हैंडल करता था। ठीक है, but generally I mean IBM was working, but they say that it was too late for IBM to dominate the mini computer scene, mini computer market, you can say. And Oracle was like already basically selling it to IBM customers also. Okay, because their product was, अभी उन्होंने लेके आ रहे हैं, after that they came, है ना, and this was a universal kind of database for mainframes, load भी अच्छा खासा हैंडल कर रहे हैं, but this was like going on parallelly, है ना, several other things were also happening. तो इस तरीके से हो रहा था वो। तो हाँ, सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हम्म सर क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है अभी? चल रही है। हाँ, सर हो दिख जाएगी, नहीं बस रही। फिनिश होने वाली है। नहीं, चल तो रही है मेरे साइड में, हाँ। ठीक है, एंड देन Oracle adopted CORDS relational database early, क्योंकि उन्होंने, because Oracle was Larry Ellison was starting, I mean he put up his own money and वो उन्होंने start किया, and he was also very impressed with initially he was very impressed and he was following that idea, he was taking that idea further. Okay, and when you take any idea further, several other things come with that. Okay, so they were facing that journey, they were walking through that journey, I mean उसमें जो भी उनके साथ में भी थे,
एंड दिस इज हाउ दे ग्रू, ठीक है। सो वैसे ही बढ़ते चले गए, फिर ओरेकल बाद में आता चला गया, ओके। Now if you see these days, okay, everywhere in all the fields it has penetrated this relation RDBMS, तो भी सभी जगह यूज हो रहा है, okay. It's used, ठीक है। It has penetrated because nowadays with the advent of mobile technology also, now since I mean previously there was suppose single machine was there and many people were working on that, okay, network wise, जैसे एक मशीन थी, सोचो ऐसे, ओके, ऐसे कोई मशीन है तो ऐसे लोग लगे हुए थे उसमें, इस तरीके से 3 4 5 या और भी ज्यादा इस तरीके से उसमें लगे हुए थे लोग। एंड दिस वाज लाइक जैसे हमारी मेन मशीन थी, मेन कंप्यूटर है ये, सोचो, है ना। तो व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई ये वन ऑन वन हो जाए किसी तरीके से, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो इवेंचुअली दैट वाज द विजन ऑफ दीज टेक्नोलॉजिस्ट्स कि भाई किस तरीके से वन ऑन वन हो जाए। वन ऑन वन का क्या मतलब था कि फाइनली ऐसा हो जाए, लेट मी लाइक ड्रॉ इट ओवर हियर, यहाँ पे इस तरह से ये लोग हैं, सोचो, ओके। ठीक है, इस तरीके से यूज कर रहे थे। एंड लेटर ऑन व्हाट दे थॉट कि भाई अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, एंड दिस इज हाउ सिस्टम ग्रोज आल्सो, ओके। ये वन ऑन वन रिलेशनशिप है, 1-to-1 रिलेशनशिप। ये आप सोचें, है ना, देखें इस चीज को, इन ईच एंड एवरी फील्ड ये होता है। जैसे आप आज की डेट में सपोज यू आर यूजिंग एनी ऑफ द सर्विसेज, एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो वन ऑन वन ही तो यूज कर रहे हो। आप भी एक टूथपेस्ट है, फॉर एग्जांपल यू टेक टूथपेस्ट, ओके, पतंजलि का मान लो दंत कांति यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं, एक आ गया अभी, इफ इट इज अ सिंगल टूथपेस्ट, so in house also we see that 3 or 4 people they all going towards that toothpaste, okay। इसका क्या मतलब है कि हम एक तरीके से वन टू मैनी टाइप का है, ओके, और मैनी टू वन यू कैन से, है ना, मैनी पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स वन थिंग। बट वन ऑन वन अगर वहां पे हर किसी का अपना, तो सब अलग अलग बैठे हुए हैं, सबके अपने पास एक एक है, ऐसा भी लोग कर सकते हैं, ठीक है। पर जनरली कुछ जगहों पर ऐसा है कि इन इन आवर हाउस होल्ड्स के भाई ये कॉमन है और देन वी आर यूजिंग, सो दैट सिस्टम इज ऑल्सो फाइन। बट टेक्नोलॉजी वाइज व्हाट इज हैपनिंग, दे पीपल वर थिंकिंग कि वन ऑन वन हो जाए, व्हाई, बिकॉज आई मीन it was very beneficial to them also, है ना, their business would grow and their this and that will grow and they will be able to sell it to more people, okay, that was their thought। तो किस तरह से पहुंचे, but definitely in evolution certain thought comes to different people, but then at the end of it, it is a kind of a distributed system, that is why I see it, okay, and that is how it is। वो फैमिली स्ट्रक्चर है, सो इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, सो देयर हैज़ टू बी अ टॉप लेवल पॉलिसी कि किस तरीके से नई चीज़ें आनी चाहिए, है ना, फॉर हार्मोनियस एंड पीसफुल लिविंग ऑन अर्थ। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि बस वन ऑन वन कर दी और ज़्यादा सेल हो गया तो फिर हम बड़े खुश हो गए, नहीं, वो पूरी बात नहीं है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। सो इसी में, सो दीज वर लाइक, ये भी एक कंप्यूटर था इस तरह से, है ना, कंप्यूटर था। फिर उन्होंने विद द एडवेंट ऑफ द मोबाइल, है ना, अभी मोबाइल आ गया तो इट इज काइंड ऑफ अ वन ऑन वन, है ना, देखा आपने, वो भी वन ऑन वन टाइप का ही हो रहा है, ओके। ये मोबाइल जब आई तो सबके पास अपने अपने हो रहे हैं, है ना, उसमें वो देख रहे हैं, तो हाउ अब उसमें कुछ चीजें ऐसी लेके आनी पड़ेंगी। सो बट पीपल यूज टू थिंक कि भाई इसमें मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज टू बी सम चेक, इस तरह का अब जो आएगा नेक्स्ट, जो आने वाली हैं चीजें, वो हैं एज ऑफ डेडिकेटेड, नाउ द एज ऑफ डेडिकेटेड डिवाइसेस इज कमिंग, ठीक है। आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल फॉर दैट। सो इसमें जैसे मोबाइल है तो उसमें भी फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, सो सर्टेन काइंड ऑफ डेटाबेसेस उसमें भी टेबल फॉर्म में रखा जा सकता है। सो सेवरल डेटाबेसेस आर नाउ इवॉल्विंग, ठीक है।
सो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर दीज डेटाबेसेस ओनली, ठीक है। फिर उसमें एक क्लाइंट सर्वर अप्रोच आई, ठीक है। एक हमारे पास क्लाइंट है, जैसे आप अपना HTTP से यूज़ कर रहे हो, और एक आपके पास सर्वर भी है, ठीक है। तो आप क्लाइंट है, जैसे कोई भी आपने, आपके पास ये मशीन है, ठीक है, और एक सर्वर तो आप जानते ही हैं ना कहाँ पे रखा हुआ है, ये आपके पास एक सर्वर है। उसी सर्वर में मान लो एक यहाँ पे डेटाबेस भी रहता है, ठीक है। किस तरीके से ये आपका सर्वर हो गया, ये भी अप्रोच हुई। सो इसमें भी मैंने वो चीज़ें देखी हैं बड़े करीब से, एंड आई हैव वर्कड ऑन देम आल्सो, कि भाई कैसे सर्वर से सारी चीज़ें ईच टाइम, है ना, यू आर, कोई भी आप रिक्वेस्ट दे रहे हो यहाँ से, तो ऐसे घूम घूम के वापस से आ रही हैं, वो पहले जाती हैं सर्वर तक और फिर वो वापस आती हैं, ओके। सो वो क्या लेता है बीच में, इट यूज टू टेक लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो एजेक्स वगैरह आ गए कि जो मेन पेज है उसे पहले लोड कर लो, और वो लोड हो गया तो शुरू में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद जो भी आपने बोला वो हमारे सर्वर से सिर्फ डेटा आना शुरू हो गया, लाइट वेट हो गया अप्रोच थोड़ा सा डेटा से, ठीक है। एजेक्स वगैरह जो आई, जब टेक्निक ही है वो, एक वेब ब्राउज़र में एक टेक्निक है, और वो आ गई, ठीक है। तो इनिशियल सर ये पेज इस तरह आपने से तो लोड। पढ़ा था, आप भी तो बताए थे तो। हाँ हाँ, मैंने करा था ये। ये सर इसी का तो आइडिया दिया था आपने। हाँ, इसी का आइडिया था, आपको याद है। हम्म। तो वो मेरा फर्स्ट ही था एक्चुअली, एक बड़ा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। लेकिन उस समय पे भाई इट वाज लाइक कि भाई आज हमारे आवर पेरेंट्स यूज्ड टू गिव अस एग्जांपल, दे somehow many of the times give us example कि भाई जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास लालटेन हुआ करती थी, है ना। बट उस समय फिर लालटेन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था कई बार, तो वो लालटेन ही हम्म। हमको बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो यही था, अब हमारे लिए तो वो काम था, है ना। तो हमने इस पे कर दिया, फिर वो बाद में फ्रेमवर्क्स भी डेवलप हो गए तो फिर वो भी कर दिए, वो भी देखे हाँ क्या है, ठीक है, खुद से बनाते भी हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि ये टेक्निक जो थी ये इट वाज लाइंग देयर इन द ब्राउजर, बट वो उन्होंने कैसे यूज करी, ओके। सो इसमें डेटाबेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि भाई किस तरीके से डेटा आ रहा है। अब नाउ इट इज हैपनिंग कि भाई जैसे वेब सॉकेट्स वगैरह आ रही हैं, तो उसमें आपके पास क्लाइंट में ही डेटाबेस कैसे स्टोर कर लें, है ना। तो ये एजेक्स से जैसे डेटा इज कमिंग एंड यू आर स्टोरिंग इट ऑन द क्लाइंट साइड, लेकिन इफ सपोज द डेटा चेंजेस ऑन द बैक एंड, है ना, तो फिर क्या होगा, अगर डेटा वहाँ चेंज हुआ तो वो फिर से वापस आएगा, है ना। सिंक होना चाहिए, एक सिंक का प्रोसेस आएगा, फिर किस तरीके से उसका पता लगेगा, पता तो नहीं लगेगा, है ना। जब आप दोबारा से लेने जाओगे अगर है तो फिर से आ जाएगा डेटाबेस। सो देयर कुड बी मेनी मेनी स्ट्रेटजीज, देयर कुड बी मेनी मेनी थॉट प्रोसेस, बट व्हाट आर पीपल डिमांडिंग, बिकॉज नाउ द मोबाइल हैज गॉन टू देयर हैंड्स, तो आप उस हिसाब से उन्हें तो दे वांट टू सी द सर्विस, ओके, दे डू नॉट वांट टू बॉदर अबाउट दीज बैक एंड थिंग्स, and then you decide, those people who are working in these domains they should decide. So this is how it evolves, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, मैं जो देख रहा था कि अब जैसे एक कई तरह के डेटाबेसेस हैं इसमें, विल टेक दैट इन सेपरेट लेक्चर, है ना, उसमें थोड़ी हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द डिटेल्स। बट जनरली जैसे एक माइस्क्यूएल है हमारे पास, है ना, ओरेकल हो गया, ठीक है, और भी कई हैं, है ना। लेकिन इसमें आई वाज सीइंग कि भाई माई एसक्यूएल कैसे नाम आया, कि वो उसके जो माई एसक्यूएल के जो को फाउंडर थे उनकी, इट वाज द डॉटर्स नेम, है ना, उनकी डॉटर्स के नेम किससे लिया गया था, माई, और एसक्यूएल तो आपको पता ही है, ठीक है, इस तरीके से ये नाम आया था, क्योंकि ये ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है माई एसक्यूएल। तो फिर एसक्यूएल के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है, चलो ये तो ये हो गए, उसके बाद एसक्यूएल में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें डीडीएल है, डीक्यूएल, डीएमएल, इस तरह से आती हैं, डीसीएल, डीडीएल, है ना, कि जैसे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है तो इसके लिए एक लैंग्वेज होगी, टेबल क्रिएट हो गई हमारी इस तरीके से, ठीक है। तो उसको डेटा ये बोलते हैं क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल करके हो गई, ठीक है। फिर उसमें हमें पास क्वेरी अगर करनी है तो डीक्यूएल हो गई, डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस ऐसे हो गई। उसमें हमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई थी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि वर्ड मैनिपुलेशन हैज़ अ different resonating frequency, so some better word could be there. So maybe coming going forward we can use Sanskrit words, है ना, in the new systems that will come. तो उसमें ये नई चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, और वो हम we will take care of that universal science also, ठीक है, which they have not taken care. तो वो कैसे होगा, वो रेजोनेटिंग साइंसेस कैसे वर्क करेंगी, और उसके हिसाब से एक चीज़ आएगी, फिर वो अच्छी आएगी, ठीक है। इवन इफ यू थिंक अबाउट, जैसे गूगल है, तो गूगल में जो लैरी पेज थे, सर्गे ब्रिन थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर ही तो लिख रखा है पेज रैंक का,
ठीक है, उसके ऊपर सारी गूगल है। तो ये रिसर्च पेपर लाइक दीज आर द आइडियाज, दे फर्स्ट कम एंड देन यू डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से डीएमएल हो गई, ये कंट्रोल लैंग्वेज भी है उसमें। ठीक है, पहले तो एक टेबल बनाना है, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ये सब आएगा डेफिनेशन में, स्कीमा वगैरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई का आ गया, डीएमएल हो गई तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, डीसीएल होती है तो राइट्स, परमिशन, ग्रांट वगैरह आ जाएंगी। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में कमिट, रोल बैक, सेव ये आता है। ट्रांजैक्शन कैसे उसमें रखे जाएंगे वो डिटेल है, विल टेक दैट इन अ सेपरेट लेक्चर। ओके, तो इस तरीके से ये आ रही हैं। बट नाउ डू यू थिंक, डू यू हैव एनी आइडिया? अभी जैसे ये MySQL भी है, ये देख रहे हैं, इसमें अंदर इंजन्स होते हैं। ठीक है, उसकी भी एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है। जैसे अभी जो यूज हो रहे हैं, कोई कोई है, जस्ट गिविंग सम एग्जांपल, InnoDB यूज होता है अभी, है ना। एक MyXam था, ये भी था कुछ दिनों पहले, है ना, 5.5 से, ऐसे कुछ कुछ वर्जन से पहले था ये। तो टेक्स्ट सर्च उसमें पूरी रहती थी, है ना। टेबल लेवल लॉकिंग है, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शन था उसमें MyXam में। तो लेकिन अभी InnoDB जो है ये फुल एसिड कंप्लाइंट है, ये बहुत अच्छा वाला है ना। तो इस तरीके से चल रहा है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस तरह का एक आ रही है दिमाग में ये चीज करने के बाद, कि अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीजें आएंगी? तो कुछ इस तरह का समझ लीजिए, जस्ट अ स्लाइड एंड देन वी विल एंड। ओके, अडेप्टिव डेटाबेसेस आएंगे अब हम, वी हैव लाइक टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो, अडेप्टिव डेटाबेसेस। ओके, ये आएंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें आने का क्या मतलब है कि सपोज आपको कुछ सर्चिंग करनी है ना, सर्चिंग करनी है, या फिर आपका कोई सिनेरियो है, सपोज सम सिनेरियोज देयर जहाँ पे सर्च ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो इसमें इसका जो इंजन होगा, अडेप्टिव डेटाबेस इंजन्स भी बोल सकते हैं, लेट अस सी दैट। ओके, सो इट विल बेस्ड अपॉन दैट डेटा इट विल स्विच टू दैट इंजन, सर्चिंग बेस्ड होगा। ठीक है, सपोज कोई है कि भाई रीड बेस्ड ही ज़्यादा है, रीडिंग ही होने वाली है ना। ठीक है, तो वो एक अलग इंजन हो सकता है। ठीक है, जैसे है, जैसे माई एजम था जो अभी हम देख रहे हैं बैक में, उसमें क्या था कि इट वाज बेस्ट सूटेड फॉर यूज्ड इन हैवी, रीड हैवी एंड मोस्टली रीड एप्लीकेशंस सच एज डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह, या वेब एप्लीकेशंस में वो वाला ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, फास्ट स्टोरेज इंजन है। तो हमारे पास अलग अलग इंजन्स हैं, आप खुद भी सोच सकते हो कि एक में मुझे सिर्फ राइट वगैरह ही करना है ना, मान लो अपडेट करना है, राइट करना है ना, सिर्फ राइट करना है, तो उसका भी एक इंजन हो सकता है। तो ये किस तरह से स्विच करेंगे, एक ऐसी हमारे पास एल्गोरिथम है जिससे कि ये अलग अलग तरह से स्विच करते जाएं। ठीक है, सर्चिंग हो गई, रीडिंग हो गई, अपडेट हो गई, या फिर कुछ और फंक्शन हो गया एक और कोई। ठीक है, इस तरीके से। सो दे विल हैव अ ट्रांजिशन पीरियड। जैसे अगर आप देखो कि हमारे जो युगास चलते हैं, ये देख लो, वहीं से वो आइडिया आ रहा है एक्चुअली। जो युगों का सिस्टम है ये ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से चलता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे रहता है। ठीक है, और उसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर दो ऐसे। तो ये जो यहाँ पे छोटा पोर्शन है ये कलियुगा होता है, कलियुगा ऐसे। इससे ऊपर होता है कौन सा है, कलयुग के बाद द्वापर है शायद, द्वापर। ठीक है, इधर भी यही होगा कलियुगा जो चल रहा है अभी। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट होता है, चल रहा है मतलब नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द द्वापर एज, खत्म हो गया है वो वैसे तो, पर उसका भी ट्रांजिशन चल रहा है, ये द्वापर एज है ना, द्वापर युगा। अभी आप, ये है त्रेता युगा, त्रेता युगा। और ये ऊपर वाला जो है, ये है सतयुगा। अब ये जो चार हुए, सिमिलरली इट इज ऑन द राइट साइड ऑल्सो। यहाँ पे फिर द्वापर हो जाएगा, ये द्वापर युगा, और ये फिर हो जाएगा तीसरा त्रेता, ऐसे, ये वाला जो है।
त्रेता युग, देखना इसको जरा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में, है ना। और ये हो जाएगा हमारा सतयुग। सतयुग, ठीक है। ठीक है, तो टाइम ऐसे मूव करता है इस तरीके से। तो अब हम कहीं यहाँ पर हैं, मतलब ऐसे सोच लो कि हम यहाँ पर हैं, कहीं ऐसे मूव कर चुके हैं। तो वेन एवर अ युग, युग में क्या होता है, एवरी युग हैज अ प्रॉपर्टीज, ओके, मेंटल फैकल्टीज से रिलेटेड है। तो कई जैसे कलयुग है तो मेंटल फैकल्टीज बिकेम वेरी लो, ठीक है। मैटर के ऊपर ही लोग, पीपल आर थिंकिंग मैटर इज एवरीथिंग, और मैटर के ऊपर दे आर फाइटिंग, ओके। और जैसे जैसे टाइम मूव करेगा, सो आप एक कलयुगा से मूव करोगे तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे सैंडविच्ड हैं एक तरीके से। तो टाइम तो ऐसे ही मूव करने वाला है साइक्लिक की तरह, ठीक है। फिर देन यू विल मूव टू द द्वापर, तो वहां पे एक ट्रांजिशन होगा। तो दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, एक ट्रांजिशन होता है, और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कितने साल का है, ठीक है। जितना कलयुग है और फिर उसका इतने परसेंट ये हो जाएगा द्वापर वाला, फिर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। ये टोटल जो बताते हैं वो 12,000 ऐसे बताते हैं, 12,000 ईयर्स की साइकिल है, ऐसे सोचो, ठीक है। और शायद आधी वाली है उतनी, है ना। तो इस तरह से रहती है ये, और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फॉरवर्ड युग इज अ लिटिल ग्रेटर देन बैकवर्ड। कलयुग से द्वापर थोड़ा बड़ा होगा, उससे बड़ा त्रेता होगा, उससे बड़ा सतयुग। सतयुग में क्या होता है कि इवन दिस स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इंटरनल नॉलेज इज विद द किड्स ऑल्सो, ओके। इतना ज्यादा प्योर होते हैं लोग, एंड दे वर्क ऑन द क्वांटम सिस्टम, मतलब डायरेक्टली क्वांटम अप्रोच ही होती है उस समय सतयुग में, इतनी प्योरिटी होती है। बिकॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स के वो सबसे करीब होते हैं जब समय यहाँ पे आएगा। तो जैसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स मान लो इधर है, उसके सबसे करीब होंगे तो योर मेंटल फैकल्टीज आर वेरी ब्राइट, है ना। पीपल आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी प्योर, ठीक है। और जैसे जैसे फिर आप नीचे जाते जाओगे तो सेंटर ऑफ यूनिवर्स से दूर जाते जाओगे तो योर मेंटल फैकल्टीज आर गोइंग डाउन, एंड दैट इज हाउ दिस साइकिल मूव्स। और हर साइकिल में न्यू टेक्नोलॉजीज कम, जैसे इस बार आप कुछ आ रही हैं और अभी आगे देखोगे आप, है ना, उस हिसाब से फिर अगली बार कुछ आएंगी। बट यू बेसिकली इट इज ऑल द प्ले ऑफ मेंटल फैकल्टीज, दैट इज वाई धम्मा आ जाता है कभी कभी अर्थ के ऊपर, है ना। फिर धम्मा आ गए तो अभी फिर वो मेंटल फैकल्टीज को प्योर करते जाएंगे, बिकॉज द टाइम इज मूविंग अप। तो एक देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड, छोटा सा एक ट्रांजिशन पीरियड हो। तो सर इसी तरह से द्वापर भी, में प्रश्न हाँ खत्म हो जैसे, जाएगी, है ना ठीक है, हाँ। सर। तो द्वापर में तो फिर प्रश्न खत्म हो जाएगी सर। क्या खत्म हो जाएगी? सर प्रश्न। नहीं नहीं, अभी तो चल रही है ना, इनर इलेक्ट्रिसिटीज का टाइम है ये, because we have moved to that age. So inner electricities, because vipassana is helping us to uncover the inner electricities. When you go inside, so you do the dhara pravah और वो सारी चीजें होंगी, तो they are like inner, वो अब बढ़ने ही शुरू हो जाएंगे आगे। That is why it has come, ठीक है, to सर benefit like। एक, देखिए एक युग में कितने साल होते हैं? इसमें मैं बताऊंगा, आप चेक कर लेना इसमें, है ना। जैसे अगर ये 1200 का है तो फिर वो उससे ज्यादा होता है 2400 का, फिर वो 3600 का, और फिर वो 4800 का, ऐसे होता है वो, ठीक है। जैसे तो मान सर लो ये अभी 1200 हम कलयुग में हैं। है। सर अभी हम कलयुग में हैं, नहीं नहीं, अभी हम उसके ट्रांजिशन में हैं, कलयुग से द्वापर के। तो बीच में हम कलयुग और हाँ, द्वापर के। मतलब ट्रांजिशन देखो, हर चीज में ना ट्रांजिशन होता है। इसीलिए इफ यू रिमेम्बर के इन माय प्रीवियस टॉक्स आल्सो, मैं बोलता रहता हूँ कि जैसे अगर आपको दिन चाहिए तो आप दिन में हो, तो अभी रात डायरेक्टली कभी नहीं आती, देखा है आपने। एक शाम होती है बीच में, क्योंकि धीरे धीरे यस सन कम सर। होते जाएंगे, है ना। शाम होगी फिर रात होगी, और फिर रात से फिर दिन आया जाएगा क्या, डायरेक्टली कभी भी नहीं आता, ठीक है। उसके बीच में देखोगे भोर होगी, थोड़ा थोड़ा सनराइज होगा और फिर आएगा। तो एक दिन में भी आप ये साइकिल्स देख सकते हो, ये ऐसा नहीं है कुछ अलौकिक साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है ये। तो दिन में भी देखो तो वो ट्रांजिशन होता है, एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड है, भोर का ब्रह्म मुहूर्त आएगा वहां पे, है ना। उसी तरह सूरज से ये निकला। भी चलता है, उसी तरह से ये भी चलता है, हाँ। 4800 ऐसे करके रहता है ये, है ना। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। तो ये इस तरीके से मिरर इमेजेस हैं दोनों। तो जब आप सोचो कि ऊपर वाला अगर मैं कंसिडर करूं तो उसमें सतयुग दोनों साइकिल्स का जुड़ जाता है, देखो पूरा ऐसे। तो सतयुग बहुत बड़ा होता है, ऐसे नीचे जो कलयुग का है तो वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों साइकिल्स का जुड़ गया है ऐसे, दोनों सेमी सर्कल्स का। लेकिन द्वापर द्वापर दोनों अलग अलग जगह हैं, इधर का द्वापर हो चुका है, इधर का अब चल रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। उसमें जब महाभारत वॉर हुई थी और वो सब आए थे, है ना। सो द सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग नाउ इन कमिंग टाइम, है ना। वो टाइम चल रहा है मतलब कि, है ना।
and then it will get cleared all the energies, and they are moving also, है ना, because many portals have opened up from earth, so they are also moving, है ना, वो जाएंगे ही अभी energies, clear energies आने वाले हैं ना, नई आत्माएं आएंगे अभी अर्थ के ऊपर, ऐसे अभी वो टाइम चल रहा है. So this is a very interesting time is going on. Okay, just I mean, ये योगदा से मैंने देखा था एक बार, और this is really nice. योगदा सत्संग सोसाइटी सर मैंने वैसे भी रिजॉइन करा सर, क्या बोला था सर आपने भी? है. तो मेरा अभी नेट चला गया था एकदम से सर, मैंने रिजॉइन करा सर, उस बीच में क्या बोला था सर आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही बोल रहा था कि इसमें जैसे सतयुग है ना, तो ये काफी बड़ा हो जाता है, जैसे 4800 4800 ऐसे जोड़ दो उसको, ठीक है. यू कैन चेक दीज नंबर्स ऑल्सो बाय योर सेल्फ. दिस इज एज पर लाइक योगदा सत्संग सोसाइटी ने दिया था, और मैंने एक बुक थी होली साइंस करके, उसमें देखा था ये चीज, है ना. एंड आई वाज लाइक रेजोनेटिंग विद दैट आइडिया. और उसमें कैसे महाअवतार बाबा जी थे, तो महाअवतार बाबा जी इस ट्रांजिशन में कब आए थे, उन्हें कब दिखे थे, है ना. युक्तेश्वर गिरी भी जब छोटे थे, फिर लहरी मास्टर थे, किस तरह से ना महाअवतार बाबा जी से वो युक्तेश्वर गिरी जी मिले थे, और तब वो टाइम हो रहा था ट्रांजिशन का एकदम. ठीक है, अब तो हम फिर भी एक संधि में हैं, और संधि जो है, संधि मतलब ट्रांजिशन जो होता है, वो भी उसका भी परसेंटेज होता है, भाई इतने साल का होगा, वो 200 साल का होगा, है ना, इधर 300 का होगा, 400 का होगा, ऐसे. यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो, मे बी इन अ सेपरेट क्लास वी विल हैव दिस डिस्कशन, है ना, कैसे होता है वो कैलकुलेट. ठीक है, आपको भी आइडिया रहेगा उसको, बिकॉज दिस इज द हायर विजन, किस तरह से अर्थ मूव करती है. मुझे ये बहुत दिनों से पता है, मैं वर्क करता रहता हूँ उन चीज़ों पे, है ना, बहुत साल हो गए. तो कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं, है ना, हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स, कैसे पूरा ब्रह्मांडिक सिस्टम चलता है, ये आपको भी धीरे धीरे पता लगता जाएगा, है ना, अलग अलग टॉक्स पे. बट एज द टाइम विल कम, देन ओनली द टॉक्स विल बी रिलीज्ड, है ना. ठीक है, तो हमने यस कुछ डिटेल्स की, और हम वी विल हैव वन मोर क्लास समटाइम्स, है ना, जहाँ पे हम कुछ डिटेल चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, विच वुड बी लाइक, तो उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा. बट एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इंजन्स जो होंगे, वो तो आपको पकड़ में आ रहा है. ओके, अडेप्टिव डेटाबेस इंजन्स जो होंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो आप जरा सा. ये जो है अडेप्टिव डेटाबेस इंजन, इसमें सपोज सर्चिंग का इंजन है. ओके, आई हैव मेनी मेनी इंजन्स एट द पेरिफेरी, और सपोज इन माय ओवरऑल सिस्टम. लेकिन अभी मान लो यू गाइज आर लाइक सर्चिंग सम थिंग्स. ओके, आप सोचो विपश्यना के बारे में बहुत सर्च करने लगे, तो सर्चिंग बेस्ड चीजें हैवी हो रही हैं अभी. ओके, एंड आई कैन अडेप्ट टू दैट थिंग कि आई विल जस्ट सी देयर विल बी काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन पीरियड, एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड होगा उसमें, ऐसा. और उसमें आई विल ऑब्जर्व, दिस विल बी ऑटोमेटिक सिस्टम. ठीक है, और वो ऑब्जर्व करेगा उसमें, अच्छा सर्चिंग इज हैपनिंग, एंड इफ इट इज हैपनिंग फॉर दैट मच टाइम, आई विल स्विच टू सर्चिंग इंजन. तो फिर वो सर्चिंग इंजन लगा देगा, तो फिर वो आपका लोड वहां बैलेंस हो जाएगा. लेकिन इन द मीन टाइम यू विल सी कि भाई अब एकदम से रीड की, अपडेट की रिक्वेस्ट ज्यादा आने लगी, है ना, लोग बहुत अपडेट करने लगे. सो वहां पे भी एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, इट विल ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम, एंड इट विल सी कि भाई अगर अपडेट ज्यादा होने लगा, तो फिर अब मैं क्या करूं, चलो फिर मैं अपडेट का इंजन लगा देता हूँ. सो इट विल बी काइंड ऑफ एन अडेप्टिव इंजन. ठीक है, मैं नहीं भी हूं तो भी चलता रहेगा वो. तो ये सारे इंजन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये उसमें अच्छे से यूज हो सकते हैं. ठीक है, एंड देयर विल बी काइंड ऑफ ट्रांजिशन विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस साइकिल, ऐसे समझ लो. ठीक है, सो ये नई चीजें आएंगी अभी. ठीक है, और लेट मी राइट. ठीक है, इनका भी अच्छे से कुछ भला हो जाए, इस तरीके से. ओके, ठीक है. So with this, I'm closing this lecture, and then we'll meet in some other class. ओके ठीक है, ओके, चलो विल मीट नेक्स्ट क्लास, है ना, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कब होगी, एंड देन विल मीट, है ना. ओके, टेक केयर. ओके सर, थैंक यू सर. टेक केयर बोथ ऑफ यू.